بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، یہ قصہ آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ مطالعہ کے بعد یہ قصہ آپ تک اس لیے پہنچایا جا رہا ہے تاکہ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اب آپ پر یہ ضروری ہے کہ ثواب کی نیت سے اسے لازمی دوسروں تک شیئر کریں۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ ہارون رشید کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء و امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہوں میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا، بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کے بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا اب اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دی تھی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور پھر 8ویں دن شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 دانک یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصرہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں، کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا 1 درم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح
बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की, मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शनिवार को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा में छुप गया कि वो मुझे ना देखे। उसके काम करने का तरीका देखा तो ये मंजर देखा, वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़े चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों के गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दरम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया। मैं इतने दरम का क्या करूंगा, और 1 दरम और 1 दानिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे शनिवार को फिर मैं उसके तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फलां वीरान जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस पर राजी किया वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लड़का बेहोश पड़ा है। आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और कहा, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखा में ना पड़। उम्र खत्म होती जा रही है और ये नेमतें सब खत्म हो जाएंगी। जब तो कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये जवाब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब है। उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरे इन्हीं चादरों में कफन दे देना, और जब इनसे नए कपड़ों की इजाजत चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा कि कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल वो सीधा हो जाएगा। आदमी के साथ तो उसका अमल ही रहता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ बादशाह हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद इन्हीं के हाथ में देना, और ये कहना कि दुनिया के एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है और वो आपसे कह गया है कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखा की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसको दफन किया और दोनों चीज़ों को गोरकन को दे दिया, और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा और कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। इस तरह यके बाद दीगरे 10 लश्कर निकले। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हजूर अक़दस की क़राबतदारी का वास्ता, जरा सा तवक्कुफ कर लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने इनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया। उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो। जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर मकान पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवा के दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचा वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा,
अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो सिर्फ 5 ही पर इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे, तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उसको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मिट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम इससे कराया था? मैंने कहा, जी हाँ। तो कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि उसकी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत थी? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ल शाना से माज़रत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे इस वक्त इसका इल्म ही ना था। ये कौन है? मुझे इनके इंतकाल के वक्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे, तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा इसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर साथ थे। इसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद चंद शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी न लौटेगा, मौत ने कम उम्री के ही ज़माना में उसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था, लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी। तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी इसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला। बस सब तारीफें उसी वहदहु ला शरीक के लिए है जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो मैंने अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर नूर ही नूर फैला रहा था। इस नूर के अबर में से उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक ताला शाना जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजवीज़ तकफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा, मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो ना कभी किसी आँख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर इनका ख्याल गुजरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है, हक ताला शाना ने इन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाब गुहाओं से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुजारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। ना इनको कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है, ना कोई नबी रसूल जानता है। और ये मजमून कुरान पाक में भी है, किसी शख्स को खबर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि हक ताला ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसे मैं निकल आया, उसके लिए यही एजाज़ो इकराम हैं जो मेरे लिए हुए। तो दोस्तों, हमारा ये किस्सा बयान करने का मकसद सिर्फ यही था कि मेरी तरह औरों की भी सलाह हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सवाब की नीयत से इस किस्से को लाजमी दूसरों तक पहुँचाए। शुक्रिया।